Okay. Now my topic of discussion today is related to the financial management. That what are the various type of factors which affect the management of the finance in relation to business organization, in relation to firm. So we will have a basic introductory part in this portion. Now let's move further. Now, as for the companies are concerned, companies need management of funds like the individuals. If we talk about an individual person, that one person is having a various sources of funds as well as the application of funds. So, in a common household, what happens that there are various sources of funds from where the funds are being generated. घर में हो सकता है कि कोई मेंबर जॉब कर रहे हो, कोई एग्रीकल्चर सोर्स इनकम आ रही हो या किसी और सोर्स इनकम आ रही हो, और घर में डिफरेंट जो है इंडिविजुअल के केस में क्या हो सकता है कि फंड्स का यूज़ भी डिफरेंट वे में हो सकता है. सो लाइक द individual, like an individual person, the business firms also may be having a certain type of cash deficiency due to the high cost of operations and poor quality of output. So businesses में भी different कैश की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है. हो सकता है जो बिज़नेस में ऑपरेशंस चल रहे हैं, कोई जो कंपनी है, मान लीजिए कोई मारुति का एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है या फिर टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, वहाँ पर भी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में ही खर्चे ज़्यादा आ जाता है. तो वहाँ पर या क्वालिटी को मेंटेन करना है प्रोडक्ट की, उसमें भी खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं. तो ये सारे के सारे फाइनेंस की प्रॉब्लम्स हो सकती है. कैसे मैनेज करना है डिफरेंट सोर्सेज को, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ उसे यूटिलाइजेशन करना है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है बेसिकली. So when we are talking about the financial management, we are having the various type of financial decisions there, that how to make a proper utilization of the various sources, from planning to various controlling, everything is involved in फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यहाँ पर भी अलग अलग तरह के, अगर हम प्लानिंग की बात करें कि कैसे कहाँ से हम कैश को लाएंगे या फंड्स को लाएंगे और कहाँ उनका यूटिलाइजेशन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है फाइनेंस के केस में. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मनी, इफ मनी इज़ बीइंग केप्ट इन द पॉकेट, दैट इज़ हैविंग नो वैल्यू. कोई वैल्यू नहीं है पैसे की अगर उसे पॉकेट में रखा जाता है. अगर इफ़ समबडी इज़ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स आइदर मे बी डिपॉजिटेड इन द बैंक, if we are depositing the amounts cash or money in the bank, we will be getting certain amount of interest. Some people may be investing their funds in the bonds, mutual funds, insurance and real estate and stock markets. In the same way, the companies are also having the various sources of investments for the purpose of their growth. मैं अगर बात कर रहा हूँ कि कई लोग जो हैं बैंक में भी कैश डिपॉजिट करवा लेते हैं अपनी मनी को. उसके अलावा जो दूसरे सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रख सकते हैं, वो अपनी लाइफ को कवर करने के लिए लैंड परचेज़ कर सकते हैं. स्टॉक मार्केट्स में डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स में परचेज़ कर सकते हैं. तो ये एक सोर्सेज हो सकते हैं. कंपनीज़ के केस में भी अलग अलग सोर्सेज इस तरह से आते हैं इन्वेस्टमेंट के. नाउ एज पर द फाइनेंसिंग फंक्शंस आर कंसर्न, फंड्स आर बीइंग जनरेटेड by the business organizations from various sources. These may be from the shareholders. Shareholders may be investing in the companies. These funds may be through the debt holders, or these may be from the financial institutions and banks, etc. Now the basic requirement is that the funds should be properly utilized. If the funds are not properly utilized, definitely there will be problem in the handling of the finance. The cost of the capital should be minimum. What is the meaning of the cost of capital? This is an important question. When we are talking about the various sources of funds, like we are talking about the debt, or we are talking about the preference shares, or we are talking about equity shares, from whatever source we are generating the funds, the cost of those funds should be minimum. Now the capital structure should be properly designed. Now what is the meaning of capital structure? Capital structure means the combination, proper mix of the debt and the equity should be made. Proper mix is required for the purpose of the long term as well as short term
सोर्सेज ऑफ फंड्स। अगर हम बात करें फाइनेंस फंक्शन की, फाइनेंस फंड्स फंक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट इशू आते हैं कि जो फंड जनरेट किए जाते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंडिविजुअल के केस में अगर हम बात करें, डिफरेंट इंडिविजुअल के केस में पहले मैं बात करता हूँ, अलग अलग सोर्सेज से फंड्स आ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा वो इनकम का सोर्स सैलरी से भी हो सकता है, बिजनेस से भी हो सकता है घर में, या इंडिविजुअल के केस में या घर के कुछ मेंबर्स की बात करें, वो फंड्स कई डिफरेंट पोर्शन से लेकर आ रहे हैं, तो वो आगे सोर्स ऑफ फंड्स। उसके अलावा लोन भी ले सकते हैं। तो इन फंड्स का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन ज़रूरी है, एक इंडिविजुअल के केस में, घर के केस में, किसी फैमिली के केस में। अब ऐसा होना ज़रूरी है कि जिस सोर्स से पैसा लिया गया है, फंड्स को जनरेट किया गया है, उनकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। मान लीजिए लोन ले रखा है, किसी फ्रेंड से लोन लेना हो सकता है सस्ता पड़ रहा हो और बैंक से लोन लेना महंगा पड़ रहा है, तो डेफिनेटली फ्रेंड से लोन लेना ही प्रेफरेबल रहेगा। या फिर ये चीज़ देखनी ज़रूरी। इन द सेम वे अगर हम बात करें कंपनीज के, इंडिविजुअल के केस में भी हमें लोन के थ्रू पैसा लेना चाहिए या फिर अपना पैसा लगाना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एक प्रॉपर मिक्स होना ज़रूरी है। लेकिन हम यहाँ क्योंकि बिज़नेस की बात कर रहे हैं, बिज़नेस के केस में जो फाइनेंस फंक्शन की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग सोर्सेज है फाइनेंस को जनरेट करने के। वो क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू पैसा आ सकता है, डिवेंचर होल्डर्स के थ्रू आ सकता है, यानी जिन्हें बॉन्ड्स भी हम कह सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स के थ्रू पैसा लिया जा सकता है। अब इन फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज अगर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। तो किस सोर्स से भी, जैसे मैंने इंडिविजुअल के केस में बात की, तो वहाँ पर जब हम मान लीजिए बैंक से लोन ले रहे हैं, वो महंगा पड़ रहा है, तो डेफिनेटली किसी और सोर्स से जहाँ से हमें शेयर कैपिटल के थ्रू अगर ठीक पड़ रहा है, हमें कम रेट पे सिस्टम अगर हमें जनरेट हो रहा है फंड्स, तो हमें उसे प्रेफर करना चाहिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर प्रॉपरली भी बनना बड़ा ज़रूरी है, प्रॉपर मिक्स होना चाहिए डेट और इक्विटी का। तो ये भी देखना बहुत ही फाइनेंस फंक्शन की कैटेगरी में ही आता है, और एक प्रॉपर मिक्सचर बनना ज़रूरी है। हमारे छोटे अवधि के लिए जो हम फंड्स जनरेट कर रहे हैं और लंबी अवधि के लिए फंड्स जनरेट कर रहे हैं, उनके बीच में प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए। उसके बाद अगला जो अगर हम बात करें, दैट इज़ इट, वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नाउ वी आर हैविंग द वेरियस टाइप ऑफ फंड्स, वी आर हैविंग द आइडल सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, a certain amount is being left after that is in the form of savings, and the whatever amount is being saved, that should be maybe either kept idle or that may be invested in some places. So proper investment decision should be made, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। इंडिविजुअल के केस में अगर हम बात करें, सेविंग्स हम करते हैं, मान लीजिए किसी की इनकम है 10,000 रुपये और वो खर्चे जो हो रहे हैं वो 6,000 के हो रहे, 4,000 पे बचत हो जाती है। अब क्या उसे सेव करके अपने पास पैसे रखना है, उसका भी शायद फ़ायदा ना, तो कुछ अमाउंट उसमें से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। वो इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी में भी हो सकती है, मंथली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके, शेयर मार्केट में भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स में भी हो सकती है, बैंक्स में डिपॉजिट किया जा सकता है ताकि उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न हासिल किया जा सके। इन द सेम वे the companies may be having certain investment decisions. These investment decisions may be related to the capital expenditure decisions. We are talking about the capital budgeting decisions. What is capital budgeting decisions? Basically, capital budgeting decisions are related to the long-term assets. Long-term investments decisions are these, and definitely investment decisions need a proper evaluation, and various techniques are adopted for those purposes. तो जब कैपिटल बजटिंग, मान लीजिए घर में भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाह रहा है कि घर में कोई फ्रिज लेना है, टेलीविज़न लेना है, और वो उसके लिए यानी कि लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट होगा, तो उसके लिए कैसे उन डिसीजंस को लिया जाए। इन द सेम वे कंपनीज़ के केस में भी मशीनरी परचेज़ करनी है, तो कैसे उन डिसीजंस को लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, काफ़ी सोच समझ कर लिए जाने वाले डिसीजंस हैं, इनको इवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। अगला जो हम बात करते हैं, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विडिटी डिसीजंस। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू कैश। नाउ इन द केस ऑफ इंडिविजुअल्स कैश भी अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ फाइनेंस मैनेजमेंट जब बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली। सो इंडिविजुअल्स के केस में भी मैनेजमेंट को कैश को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आइडल कैश पड़ा रहे, यूँ ही बेकार पड़ा रहे, उससे बेटर है कि इन्वेस्ट किया जाए, और ऐसा भी दिक्कत ना है कि कैश की कमी हो जाए, वो भी एक नुकसान वाली पोजीशन। द सेम वे in the case of the companies, there should be proper utilization of the cash, a proper management of the current assets is required, and the idle
cash should be minimum, and this is liquidity decisions are basically related to working capital management. डे टू डे डिसीजन जो होते हैं उसके बारे में लिक्विडिटी डिसीजंस आते हैं. रूटीन के जो डिसीजंस है, मान लीजिए हाउस होल्ड के केस में अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ, घर में कोई राशन की बात करते हैं या फिर रूटीन में जो डिसीजंस है उनके लिए पैसे की क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट है, या कोई ऐसे जो रूटीन के जो डिसीजंस हैं, कोई जो भी अमाउंट्स घर में यूटिलाइजेशन होनी है, वो सभी के सभी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की कैटेगरी में मान सकते हैं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनीज बेसिकली. तो कंपनीज के केस में जो डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है, परचेज़ करना है, अपना स्टॉक को परचेज़ करना है, बेचने के बाद कुछ पैसा वापस आएगा, इन्वेंट्री को कैसे मैनेजमेंट करना है, यानी कि स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, ये सारे के सारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के डिसीजन हैं, ऑल इन ऑल लिक्विडिटी के डिसीजंस हैं. Now next one important decision related to dividend decisions. Now when we are talking about the sole proprietorship or partnership or other forms of business organizations, basically in case of sole proprietor, single person handles the whole of the profit. Whatever profit is being generated, whatever loss is being generated, that goes to single person. In the same way, partnership, when we are talking about the partnership concerns, that is divided among the partners. Now when we are talking about the joint stock companies, there are shareholders who have been investing their funds in the business organization. So whatever profit is there available in the company form of organization, that is divided among the shareholders in the form of dividend. So this type of dividend can be either in cash or it may be stock dividend. Or as for the expectation of shareholders are concerned, some shareholders may be demanding the immediate cash dividend and some may be going for the later on payment. So these dividend decisions should be properly made. तो dividend की मैंने बात कही. सोल प्रोपराइटर के केस में जो एक अकेला आदमी बिजनेस करता है, वहाँ पर एक अकेला आदमी प्रॉफिट लेता है सारा का सारा. पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है. लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स को डिवाइड होता है. जो प्रॉफिट का हिस्सा उन शेयर होल्डर्स को मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं. उस डिविडेंड को कैश में भी पे किया जा सकता है, किसी और फॉर्म में भी कैश में पेमेंट की जा सकती है. और उसी तरह से जो डिविडेंड है वो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस शेयर होल्डर्स की अलग अलग है, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए डिविडेंड की डिसीजन लेनी ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट इज़ रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स. Now funds जो कि whatever funds have been generated by the business organization by the firm, these should be properly utilized and the proper management of the fund should be done. If there is no proper management of the funds, then definitely it will be problem creating situation. There may be certain standards. The funds whatever being generated, standard should be fixed for the expenditures, for the procurement of funds. अब जो हम फंड्स की बात करें, उनके ऊपर चेकिंग होना बहुत ज़रूरी है. ऐसा ना हो कि उनका मिस यूटिलाइजेशन हो. तो स्टैंडर्ड्स का फिक्स होना ज़रूरी है. ज़्यादा बेहिसाब खर्चे ना हो, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा. और फंड्स की कमी ना हो, ये भी ध्यान रखना पड़ता है. तो ये इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है. उसके बाद व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, व्हाट आर द वेरियस important activities related to the finance manager. When we are talking to the finance manager having the role of procurement of funds for the business activities. What are various sources from which the funds can be generated, either through banks or through the shareholders or through the these may be equity shareholders, these may be preference shareholders. So this is the responsibility of the finance manager, from where the funds could be generated. Now the next one is making the investments. These investments will be the long term investments. लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो कि फाइनेंस मैनेजर को लेना होता है. या छोटी अवधि के भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन उन्हें देखने होते हैं. उससे पहले मैंने ऊपर कहा कि फ़ंड्स कहाँ से आएंगे, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है फाइनेंस मैनेजर को, किन सोर्सेज से फ़ंड्स को जनरेट किया जा सकता है. Now when we are talking about the American context, basically there is one important function that is related to treasury operations for the effective management of cash. Now ट्रेजरी मैनेजमेंट मीन्स इसे देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि फाइनेंस मैनेजर के केस में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. उसी तरह से टैक्स प्लानिंग कैन बी इम्पॉर्टेंट फंक्शन रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ शेयर प्राइस एंड फॉरेक्स मार्केट्स. क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी करेंसी के रेट्स बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, उस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फाइनेंस मैनेजर को. उसी तरह से टैक्स की प्लानिंग करना, कितना टैक्स सेव किया जा सकता है, शेयर प्राइस इन्वेस्टमेंट अगर हुई है शेयर्स में स्टॉक मार्केट में, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है फाइनेंस मैनेजर को. नाउ व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर? दीज आर रिलेटेड टू फोरकास्टिंग, द प्लानिंग
and whatever the forecasting planning, he has to predict the short term and long term needs of the in terms of cash of the business concern. ध्यान रखना होगा कि छोटी अवधि के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है और लंबी अवधि के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ये फाइनेंस मैनेजर को देखना है. उसे फोरकास्ट करना पड़ेगा, उसे अनुमान लगाना पड़ेगा क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. In the same way, he have to make a proper coordination and control in the different departments as for the generation of funds is concerned, the allocation of funds. किस डिपार्टमेंट्स को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से फंड जनरेट होंगे, कहाँ उनका यूटिलाइजेशन होगा, किस डिपार्टमेंट में, ये भी उसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. In the same way, the finance manager should have the knowledge about the financial markets. He should have the knowledge about the capital markets, because he has to make short investments. These investments may be also in the form of liquid investments. The long term investments will have to be made by him. Another option which is the finance manager function is that is a risk management. He have to be टेक केयर ऑफ द रिस्क, बिकॉज हम बात करें अगर रिस्क एंड रिटर्न के बीच में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनना ज़रूरी है. रिस्क कम से कम उसे लेना है इन्वेस्टमेंट में और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा आनी है, चाहिए उस चीज़ का ध्यान रखना होगा. और उससे पहले जो है उसे कैपिटल मार्केट, जो स्टॉक मार्केट की जानकारी होनी चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट्स की जानकारी होनी चाहिए, कहाँ पे फंड्स को प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट की जा सकती है ताकि समय पड़ने पर कैश की भी कोई दिक्कत ना हो. लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट अगर किया जा रहा है उस पर भी ध्यान रखना होगा. छोटी अवधि के लिए किन फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके बारे में निर्णय उसे लेने होंगे. In the same way, last one point is performance management. You have to evaluate the performance of his firm. Evaluate this for performance of firm means उसे चेक करना होगा कि स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही है ऑर्गेनाइजेशन की नहीं कर रही, जहाँ तक फंड्स का सवाल है. तो ओवरऑल फाइनेंस मैनेजर की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी आर टॉकिंग अबाउट द finance manager. He'll have to take care of the capital budgeting decisions, long-term investment decisions and short-term investment decisions. What would be the cost of capital? He'll have to take care of cost of capital, working capital management. कहने का मतलब है कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने होंगे, डिविडेंड के डिसीजन उसे लेने होंगे. उसे फाइनेंस मैनेजर को लंबे समय के लिए कौन कौन से एसेट्स परचेज़ करने हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के डिसीजंस होंगे. इन सब के बारे में डिटेल्स में हम आगे बातचीत करेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.